last class about the publicity and public relation, and today we are going to complete the AIDA model, AIDA model, as well as we will complete the hierarchy of effect model and IMC, integrated marketing communication. We are going to complete all these topics. Okay, so AIDA क्या होता है? I'll explain it in the short. But इससे पहले I just want to know कि कस्टमर या फिर कंज्यूमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में अवेयर करवाते हैं एडवर्टाइजमेंट के थ्रू या फिर न्यूज़पेपर पे या लोगो ये सब के जरिए. that is public relation or publicity. Are not highly informed in this. Mainly a particular organization and the association who deal with sponsorship of and do any advertisement of any another company. So this is publicity, and people and consumer, as well as we can say that social people mainly take a major role in this publicity, and they are highly involved. Who are majorly involved in the publicity? सबसे ज़्यादा कौन involved होता है publicity में, विश्वजीत? मैम publicity होता कैसे है? People are mainly people are involved in it. Okay, so you want to say that people are involved in this more than company. Publicity में Adiba, yes, what do you want to say? बताइए बच्चे. मैम मीडिया, जर्नलिस्ट, रिपोर्टर्स ये लोग सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं. Very good. Media, journalists are involved in basically publicity, and sometimes always publicity is beyond the control of the company. That is not designed as the advertisement, right? So who is going to tell me about the features of publicity? Raise your hand. What are the features of publicity? Raise your hand. Publicity के features बताइए मुझे. The features of publicity. कौन बताएगा मुझे? Raise your hand. What are the features of publicity and public relation? कौन बताएगा मुझे? Who is going to tell me about it? The first feature is that the cost of publicity is very much lower than the cost of advertisement. And the second one, it is a non-paid off market publicity. You don't have to pay something to get publicity. The direct expense we don't need to incur, right? Means there is some amount, but direct amount like advertisement we don't need to incur. Yes. Okay. Where can we use publicity? In a new product launch, we can use publicity. While doing a CSR, corporate social responsibility thing, we can do publicity, or any special achievement done by any employee of a company. In that case, we can do the publicity, where mostly publicities are carried through radio, TV, social media, and newspaper, through these things. And company has no control over publicity. It can be a good publicity also, and sometimes it can be a bad publicity also. There is no control, and publicity is getting favorable amount of presentation or group. A favorable amount of goodwill that we can get from publicity. So these are the main. Very good. Next, what is the meaning of public relation? Public relation क्या होता है? Raise your hand. Public relations. What is the meaning of public relations? See, publicity is a part of public relation, but still we can say something that some strategies are different. Yes, Vishwajit. Yes, Vishwajit. Yes, ma'am. I think, ma'am, public relation is a process of creating a relationship with consumer, ma'am, and thinking the welfare and the wealth and the service about consumer also, as well as own also. मैम इसमें कंज्यूमर के लिए भी हम लोग सोचते हैं, और जितना ज्यादा हो सके उतना हम लोग उन लोग के लिए सोचते हैं और उन लोग के लिए अच्छा करते हैं, ताकि वो हमारे लॉयल कस्टमर रहे, लॉन्ग टाइम तक रहे, एज मच एज दे कैन, और मैम जितना मतलब हो सके हम लोग उतना उन लोग के लिए सोचते हैं. Okay, ठीक है. The public relation is something we can say in public relation companies are making strategies to develop the relationship with the public. In public, it includes all the people
लोग हैं, जो भी हमारे कंज्यूमर होंगे, बहुत सारे ऐसे होंगे जो पब्लिक होंगे बट कंज्यूमर नहीं होंगे हमारे, बट we'll just try to make the relationship, develop the relationship with whole public and we'll think about everyone, ठीक है. And one more thing, we'll make the strategy and for that we have even organized a separate department that is known as PR department, ठीक है. We can conduct different interviews, हम लोग इसमें interviews वगैरह conduct कराएंगे, some demonstration वगैरह product का करवा सकते हैं, ठीक है. कुछ CSR प्रोग्राम्स वगैरह बेसिक के अंदर में आपके आ जाएंगे. These all things are basically for maintain a goodwill, good reputation of the company as well as for basically increasing the awareness of product and services available in the organization. तो public relation is something which is, जिसको हम बोल सकते हैं कि ये क्यों बनाया जाता है, for the long term growth of the company, यानी कि कंपनी का लॉन्ग टर्म में आपका ग्रोथ हो, ठीक है. कंपनी लॉन्ग टर्म में बेनिफिट रहे, उसको बेनिफिट मिलता रहे और आपके कंज्यूमर्स के साथ, आपकी पब्लिक के साथ एक हार्मोनियस रिलेशनशिप में डेवलप कर पाए, एक ट्रस्ट बेसिकली इंक्रीज कर पाए ब्रांड का, ठीक है. किसके विद इन, बेसिकली पब्लिक के विद. तो इसको कहते हैं पब्लिक रिलेशन. हु इज गोइंग टू टेल मी अबाउट द फीचर्स ऑफ पब्लिक रिलेशंस? हु इज गोइंग टू टेल मी अबाउट इट? हम लोगों ने सिर्फ ये, First of all, it is a paid form of market promotion. It is designed to maintain maintain relations with customers and suppliers. It is continuous activity or perhaps a routine activity. It is an integral part of managerial part, and it is basically used to. It is normally used to maintain the image of the company so that the customer do not forget about the company. Forget, or they will never try to switch the brand, right? Maybe they will become loyal because of the public relations and because of the worthiness of the company, and that will increase because of PR, public relations, ठीक है. Now we already completed this publicity and public relations. Now we just need to move toward the model that is known as AIDA, AIDA. Yes, Ved? Yes, Ved? That because of PR we can increase the brand awareness, we can increase the worthiness or equity of brand, ठीक है. We can increase the loyalty of customers, we can gain the trust of the consumers, or we can trust, यहाँ पर consumers मत लिखिएगा, public लिखिएगा. We can basically earn the trust of the public, ठीक है. गुड एक ब्रांड और एक लुक होगा, आपके प्रोडक्ट के बारे में लोग जानेंगे, ठीक है. द पीपल विल अवेयर अबाउट योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. हो सकता है सेल्स वगैरह भी इंक्रीज हो, ठीक है. और एक सोशल वेलफेयर के लिए काम करेगा, तो वही फाइनली गुडविल इंक्रीज होगा. इन शॉर्ट इट विल हेल्प टू, हम रिटेन कर सकते हैं रिलेशनशिप विद कंज्यूमर्स एंड पब्लिक लॉन्ग टर्म में भी, और साथ साथ में इट विल बेनिफिशियल फॉर द फ्यूचर एज वेल, ठीक है. आपकी कंपनी का नाम होगा, एक बोल सकते हैं पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा आपकी कंपनी पे, ठीक है. लिख लिया इतना पॉइंट काफी है, आई गेस 3-4 पॉइंट तो आप लोग लिख सकते हो इसमें, है ना. अपने से आप बना के भी लिख सकते हो, बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, बट उसके बाद जो भी चीजें ना, यू कैन राइट एनीथिंग इन. ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड AIDA मॉडल, आइडा जिसको हम कहते हैं, ठीक है. अब ये AIDA क्या है? तो AIDA जो है आपका, इसका बेसिकली फुल अगर मैं बताऊं, इसको एक छोटा सा एब्रिविएशन है. इसको अगर मैं ब्रेक करूं तो A से अलग वर्ड है, I से अलग, D से अलग, और फिर फाइनली A से अलग. A से क्या है? अवेयरनेस है. I से इंटरेस्ट है. फिर D से A से अवेयरनेस, I से क्या है आपका? इंटरेस्ट. D से डिजायर, और फाइनली A से क्या है? एक्शन, ठीक है. सो दीज 4 वर्ड्स मेक आइडा मॉडल. अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडा? अगर मैं आइडा की बात करूं तो दिस मॉडल इज, ये जो मॉडल है, इट रिप्रेजेंट द कॉग्निटिव प्रोसेस. कॉग्निटिव प्रोसेस का मतलब एक लर्निंग प्रोसेस बताता है कि कैसे कंज्यूमर जो है परसुएड होता है, यानी परसुएशन होता है, इन्फ्लुएंस होता है टुवर्ड द प्रोडक्ट एंड services, like how the consumers are going to learn and how much they are persuaded from the promotion which you are doing for influencing the consumer. तो यहाँ पर आइडा मॉडल जो है, एक बता सकते हैं इंटेंसिटी बताता है, ये बताता है कि किस तरीके से आपका जो प्रमोशन है वो कितना
इफेक्टिव है और किस तरीके से हम कस्टमर को इवन परसुएड भी कर सकते हैं, यानी कि कैसे हम उनको अवेयर करवाएं, कैसे उनको इंटरेस्ट दिलवाएं, डिजायर एंड फाइनली एक्शन का मतलब कैसे वो प्रोडक्ट को परचेज करे, कौन, कंज्यूमर। तो ये एक स्ट्रैटेजी है जो कंपनीज यूज करती है, ठीक है। इट इज अ काइंड ऑफ ब्लूप्रिंट, एक तरीके से ब्लूप्रिंट है, एक स्ट्रक्चरल फॉर्म है कि किस तरीके से हमें कंज्यूमर को सारी चीजें लर्न करवानी है about the particular product and services, how this process is going on। cognitive learning का मतलब क्या होता है कि जब आप कोई भी चीज को देखते हैं, जब आप इन्फ्लुएंस होते हैं, उसके लिए आप जो भी चीजें अपने दिमाग में प्रोसेस करते हैं, जो एक्शंस और एक्टिविटीज उस पर्टिकुलर चीज को देख करके whatever we learn, ठीक है, whatever we understand, तो दिस इज अ काइंड ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग जहां पर हम कुछ चीजों को सीखते हैं। अब यहाँ पर एडवर्टीजमेंट के थ्रू हम किस तरीके से परसुएड हो रहे हैं, किस तरीके से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, किस तरीके से कस्टमर को इन्फ्लुएंस करना चाहिए हमें, उसके बारे में हम आइडा में पढ़ेंगे। तो आइडा लिख लीजिए, और आइडा में हम बेसिकली क्या यूज करेंगे, एक प्रॉपर एडवर्टीजमेंट करेंगे, ठीक है, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग और सारे फंक्शंस जो फाइनली हमारे लिए कैसा रिजल्ट दे, आउटपुट दे, बेसिकली कह सकते हैं फाइनली कंज्यूमर परचेज कर पाए प्रोडक्ट को, यानी फाइनली जो है आपका प्रोडक्ट जो है वो परचेज करे कौन, कंज्यूमर, ठीक है। आइडा पे थे। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडा, इसके बारे में 2-3 पॉइंट्स हम लिखेंगे, और किस तरीके से जो कंपनीज हैं वो प्रमोशन मिक्स के लिए जो स्ट्रैटेजीज बनाती हैं, किस तरीके से आइडा या फिर बोल सकते हैं किस तरीके से कंज्यूमर को बेसिकली कॉग्निटिव लर्निंग में हेल्प करती है, किस तरीके से हम परसुएड होते हैं किसी प्रमोशन या किसी पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट को देखकर। तो ये बेसिकली टोटल जो है वो आइडा है। अब इसमें 2-4 आप लाइन लिख लीजिए कि आइडा क्या होता है। लिखिए, AIDA model is a blueprint. AIDA model is a blueprint that marketing. AIDA model is a blueprint. AIDA model is a blueprint. Blueprint क्या होता है, सबको पता है? Blueprint क्या होता है? What is the meaning of blueprint? तरीके से आउटलाइनिंग कहते हैं ब्लूप्रिंट को, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन के बाद ये क्या सिचुएशन होगा, उससे पहले जब हम कोई प्री प्लानिंग करते हैं, कोई डिजाइनिंग करते हैं, तो इसको कहते हैं ब्लूप्रिंट, ठीक है। सो आइडा मॉडल इज अ ब्लूप्रिंट, आइडा मॉडल इज अ ब्लूप्रिंट दैट मार्केटिंग कॉमा एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स फंक्शन used to target all touch points during a customer's purchase journey, customer purchase journey that is from getting to know about the product to चलिए, that is from getting to know about the product to finally buying it, AIDA model is a blueprint that marketing, advertising and sales functions used to target all touch points during a customer's purchase journey that is from to getting to know about the product to finally buying it। यानी यहाँ पर सबको पता है बेसिकली, जैसे आप लोग सबको पता है कि कोई भी प्रोडक्ट अगर हम परचेज करने जाते हैं, कभी भी कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो उससे पहले हम अटेंशन देते हैं। जैसे हमने कोई एडवर्टीजमेंट देखा, हमने टेंशन दिया, उसको देखा, कई बार देखा। जब आप एक कंसंट्रेशन के साथ कोई चीज को देखिएगा तो लर्निंग विल बी हायर एज कंपैरिजन टू नॉर्मल। अगर आप अटेंशन के साथ आपने देखा, यू लर्न द थिंग्स फ्रॉम द एडवर्टीजमेंट।
आफ्टर दैट आपका इंटरेस्ट जगह कि ये प्रोडक्ट मुझे खरीदना चाहिए, ठीक है। फिर फाइनली यू डिजायर कि ठीक है चलिए हम यहाँ से खरीदे, कैसे खरीदे, कहाँ से खरीदे, यू डिजायर्ड अबाउट दैट, एंड फाइनली द प्रोडक्ट जो है, जो एक्शन जो है वो कंप्लीट होगा, यानी प्रोडक्ट आपने खरीद लिया, परचेज कर लिया। तो ये हर एक कंपनी को पता है कि कोई भी कंज्यूमर विदाउट इन्फ्लुएंस, विदाउट गेटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, दे आर नॉट गोइंग टू बाय द प्रोडक्ट। तो ये जो चारों स्टेज जहां पर कोई भी कंज्यूमर कॉग्निटिव लर्निंग के थ्रू बेसिकली प्रोडक्ट को परचेज करता है, तो उसके लिए हमें कौन कौन सी मार्केटिंग, सेल्स और एक्टिविटीज करनी चाहिए। एक तरीके से कह सकते हैं एक मॉडल है जो बेसिकली कंपनीज यूज करती है, कोई भी प्रोडक्ट को मार्केट में लाना है, उस प्रोडक्ट को कैसे सेल करना है, और ये जो कंज्यूमर का बिहेवियर है कि प्रोडक्ट के लिए वो कॉग्निटिव लर्निंग का यूज करती है, उसको हेल्प लेते हुए, उसका हेल्प लेते हुए कैसे हम प्रोडक्ट को प्रमोट करें। यानी इन चारों स्टेजेस के लिए, जो चारों स्टेज है ना आइडा में, अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिजायर्ड एंड एक्शन, इन चारों स्टेज के लिए कंपनीज स्ट्रैटेजी बनाती है कि अटेंशन के लिए क्या करना है हमें, डिजायर क्रिएट करने के लिए क्या करना है, इंटरेस्ट के लिए क्या करना है, फाइनली परचेज के टाइम पे हमें क्या क्या एक्शंस लेने हैं, मतलब क्या क्या बेसिकली हमें मार्केटिंग, सेल्स एक्टिविटीज करना है, ठीक है, ताकि कंज्यूमर के बिहेवियर को हम इन्फ्लुएंस कर सके। कई बार सम टाइम वी आर बेसिकली वाचिंग द एडवर्टीजमेंट, हम देखते हैं, बट फाइनली जब हमारा इंटरेस्ट होता है, फिर कुछ ऐसे रीजंस होते हैं, कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन होती है, कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है जिसकी वजह से हम प्रोडक्ट को नहीं परचेज करते हैं। तो ये जो चारों प्रोसेस है जब तक कंप्लीट नहीं होगा, इसका मतलब यही है कि आपका जो मार्केटिंग है दैट इज नॉट इफेक्टिव। यानी कि जब तक उसका आउटकम फाइनल आपका परचेज में नहीं क्रिएट होता है, परचेज नहीं होता है, कोई भी प्रोडक्ट नहीं लेता है, आउटकम पॉजिटिव नहीं है, तब तक योर मार्केटिंग एंड सेल्स और फंक्शंस आर नॉट इफेक्टिव बेसिकली। क्लियर हो गया? तो आइडा में अब आगे लिखिए, जो कंज्यूमर की जो जर्नी होती है किसी चीज को समझने, प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, दैट इज स्टार्टेड विद द अवेयरनेस। तो अवेयरनेस, यहां पर एक चीज देखिएगा, इसको बता दूं मैं, अवेयरनेस जो है सबसे पहले लिखिए, अवेयरनेस क्या होता है, इसको एक और टर्म बोला जाता है, आइडा मॉडल को एक और टर्म बोला जाता है, दैट इज परचेज फनल। परचेज फनल, ठीक है, परचेज फनल, FUNNEL, फनल, परचेज फनल, ठीक है, परचेज फनल। क्लियर है? अब आगे देखते हैं कि स्टेज 1 अवेयरनेस में क्या क्या चीजें कंपनी एक्टिविटीज। मैम एसी नहीं है। तो फर्स्ट जो अवेयरनेस है, तो इसमें पहली चीज कि आप जो एडवर्टीजमेंट कीजिए, आप प्रोडक्ट को जो प्रमोट कीजिए, वो इतना बेस्ट होना चाहिए। आप कभी भी आप इंटरव्यू देने जाइएगा तो आपको ना एक लाइन बहुत ज्यादा सुनने के लिए मिलता है, व्हाट, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ट्रू और नॉट। सो अटेंशन स्टेज में बेसिकली आपको यही करना है कि जो आप फर्स्ट इंप्रेशन अपने प्रोडक्ट और सर्विस का दीजिएगा, दैट शुड बी बेसिकली परफेक्ट, राइट, ताकि जो कंज्यूमर्स है उनका अटेंशन आप गेन कर सकें। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेज में लिखिए, द फर्स्ट इंप्रेशन कैन बी द लास्ट इंप्रेशन, द फर्स्ट इंप्रेशन कैन बी द लास्ट इंप्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन कैन बी द लास्ट इंप्रेशन, ठीक है। अब इस स्टेज में क्या होता है, इस स्टेज में जो कंज्यूमर्स है वो ब्रांड के पास आते हैं, मतलब इट कम अक्रॉस द ब्रांड, मतलब ब्रांड को देखते हैं, ठीक है। और कैसे ये जानते हैं, अवेयरनेस का मतलब क्या हुआ, एक तरीके से आपको इंफॉर्मेशन कहीं से मिल रहा है, ठीक है, वो चाहे वो टेलीविजन देखकर मिले, या कोई पर्सन आपको बोले, यानी माउथ पब्लिसिटी के थ्रू पता लगे, या फिर आपका किसी कियोस्क डिस्प्ले हो प्रोडक्ट का, ये सारे के सारे जो स्ट्रैटेजीज यूज होते हैं, ये सारे अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए होते हैं। अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कंपनीज क्या क्या करती हैं, जैसे कि वो एक बोल सकते हैं कि माउथ पब्लिसिटी के थ्रू लोगों को अवेयरनेस होता है। जैसे मैंने आज बहुत कोई प्रोडक्ट खरीदा, मान लीजिए मैंने कोई कुर्ता खरीदा, तो मैंने आकांक्षा को बोल दिया कि आकांक्षा ये बहुत बेटर है, इफ यू वांट टू परचेज यू कैन। सो एक माउथ पब्लिसिटी हुआ, ठीक है। अब आकांक्षा को मन होगा तो ये अवेयर हो गई कि इस तरीके के प्रोडक्ट मार्केट में मिलते हैं, अब इसको परचेज करना हो वो जाके देखे, राइट, ट्रू और नॉट। तो यहाँ अवेयरनेस के लिए या तो आपका रिकमेंडेशन या पब्लिसिटी हो रहा, माउथ पब्लिसिटी, या तो मैंने एडवर्टीजमेंट देखा, जैसे मैंने कोई नया प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट देखा और फिर मैंने देखा नहीं ये कौन सा नया प्रोडक्ट आया मार्केट में, तो मैंने उसको देखा, एडवर्टीजमेंट को देखा। उसके बाद मैं कहीं से जा रही थी, जैसे मान लो कि आई एम जस्ट ट्रैवलिंग समवेयर एंड एट दैट टाइम आई सॉ, मैंने देखा कि कुछ डिस्प्ले हो रखा है, यानी दूर से जैसे डमीज वगैरह आप देखते हो, कभी सोचा ये क्यों होते हैं डिस्प्ले, बेसिकली दिस इज फॉर अट्रैक्टिंग द कंज्यूमर, राइट। कंज्यूमर दूर से देखेगा, इंपल्स परचेज करेगा, यानी खरीदना नहीं है लेकिन देखकर अट्रैक्टिवनेस था,
गए और देखा, ट्राई किया। तो ये सारे तरीके से कंज्यूमर क्या होते हैं, अवेयर होते हैं ब्रांड के बारे में, उनको पता लगता है, नॉलेज मिलती है। तो इसमें लिखिए नेक्स्ट, in the first stage a consumer come across the brand, ठीक है। The first impression can be the last impression. In the first stage a consumer comes across the brand. This can be through an यानी अवेयरनेस कैसे होगा, this can be through an advertisement के थ्रू, this can be through an advertisement, ठीक है, और word of mouth, ठीक है, एडवर्टीजमेंट के थ्रू, वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू, और कियोस्क डिस्प्लेइंग प्रोडक्ट। कियोस्क डिस्प्लेइंग का मतलब काउंटर वगैरह जो नहीं बने होते हैं शॉप वॉप में जहां पर प्रोडक्ट शो होते हैं, डमीज वगैरह। सो यहाँ पर कियोस्क डिस्प्लेइंग प्रोडक्ट, ठीक है, कियोस्क डिस्प्लेइंग प्रोडक्ट। आजकल तो आपको पता है कि आजकल जो सोशल मीडिया है वो भी बहुत बड़ा रीजन है, और साथ साथ कंटेंट राइटिंग और ब्लॉग्स, दीज आर आल्सो द पार्ट ऑफ अवेयरनेस नाउअडेज। यानी आपने नोटिस किया होगा कोई भी प्रोडक्ट आता है तो उसके बारे में ब्लॉग्स वगैरह बहुत आ जाते हैं। ये सब तो छोड़िए, वीडियोस कितने सारे बन जाते हैं। जैसे कोई मोबाइल फोन भी लॉन्च होता है, उसकी ड्यूरेबिलिटी से रिलेटेड, उसकी क्वालिटी से रिलेटेड, उसकी स्क्रीन, कैमरा, सब चीजों से रिलेटेड यू विल सी सो मेनी टाइप ऑफ वीडियोस, ठीक है। सो दीज ऑल आर द बेसिकली व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स दीज आर, बेसिकली ये सारे क्या करते हैं, आपके अवेयरनेस, आपकी नॉलेज को, आपको इंफॉर्मेशन देने के तरीके, ठीक है। तो ये लिख लिया, दिस कैन बी डन थ्रू एडवर्टाइजमेंट, वर्ड ऑफ माउथ, कियोस्क डिस्प्ले, और साथ साथ में यू कैन आल्सो राइट स्पॉन्सर्ड कंटेंट। स्पॉन्सर्ड कंटेंट का मतलब क्या होता है कि जहां पर आपने पैसा देके कंटेंट लिखवाए, ठीक है, तो समय स्पॉन्सर्ड कंटेंट या किसी को आपने काम दे दिया हो, ठीक है। तो ये सारी जो होगी चीजें से क्या होगा, ये सबसे आपका बेसिकली अवेयरनेस क्रिएट होगा। किसको मिलेगा नॉलेज, अवेयरनेस किसको मिलेगा, बेसिकली आपके कस्टमर, कंज्यूमर, ठीक है। तो यहाँ ये जो था, इसमें क्या क्या चीजें, मतलब 10, अगर आपको पता है कि ब्रांड के लिए, ब्रांड में या फिर फाइनली परचेज के लिए, या फिर बोल सकते हैं फाइनली सेल होने के लिए ब्रांड को के बारे में अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है, ठीक है। सो ब्रांड कैन गेन अटेंशन। अब ब्रांड किस तरीके से अटेंशन ले सकता है कंज्यूमर का, तो लिखिए इसमें, ब्रांड कैन गेन द अटेंशन ऑफ कंज्यूमर्स थ्रू brand can gain the attentions of consumers through personalized messaging, personalized and personal messages वगैरह भेजना, ठीक है। intelligent targeting, intelligent targeting, ठीक है। यहाँ पर फूड डिलीवरी ऐप वगैरह क्या करते हैं कि देखिएगा, जो ज्यादा ऐप यूज कीजिएगा ना, जैसे जोमैटो अगर आप बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो यू विल गेट सो मेनी काइंड्स ऑफ मैसेजेस, ऑफर्स, डील्स, राइट। सो दे आर टारगेटिंग। जो इंटेलिजेंट टारगेटिंग का मतलब क्या होता है ना, कि दे अंडरस्टैंड कि कौन पर्सन कौन से मीडिया को सबसे ज्यादा यूज करता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम यूजिंग फेसबुक अ लॉट, दे अंडरस्टैंड दैट आई एम ऑलवेज इन, मतलब ऑन फेसबुक, मैं हमेशा फेसबुक पे रहती हूँ, तो दे विल ट्राई टू शो मी सो मेनी काइंड्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट, व्हाटएवर आई एम सर्चिंग या कुछ भी। तो आजकल कुकीज और ब्राउजर्स जो है ना, ये इसी के लिए होते हैं। कुकीज एक्सेप्ट कीजिए, और एवरी व्हाटएवर यू आर वाचिंग, दे अंडरस्टैंड कि आप क्या ढूंढ रहे हैं। अगर यू आर सर्चिंग बैग्स, दे विल अंडरस्टैंड दैट यू आर सर्चिंग फॉर द बैग्स। तो यहाँ पर आपको किस तरीके से आप ब्रांड के लिए अटेंशन क्रिएट कर सकते हो बेसिकली कंज्यूमर का, बाय यूजिंग द पर्सनलाइज्ड मैसेजिंग, मेल्स कर सकते हो, या तो फिर आप इंटेलिजेंट टारगेटिंग कीजिए कि कौन से कस्टमर क्या पर्टिकुलरली कौन से ऐप को बहुत ज्यादा यूज करते हैं। जैसे मैं भी सबसे ज्यादा यूज करती हूँ फूड के लिए जोमैटो, बट देयर इज आल्सो ऑप्शन स्विगी, खैर फूड पांडा तो आई थिंक खत्म हो गया है, एंड देयर आर सो मेनी अदर एप्स, राइट। उबर ईट्स आर आल्सो देयर, उबर ईट्स इज आल्सो देयर। सो लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर अवेलेबल, एंड जो ज्यादा मैं ऐप यूज करूंगी उसके सबसे ज्यादा मेल, मैसेजेस और ये मेरे पास आए। तो एक इंटेलिजेंट टारगेटिंग। नेक्स्ट इज अटेंशन के लिए, जैसे कई बार once I saw 50% डिस्काउंट ऑन Zomato, तो इट इज अ काइंड ऑफ अट्रैक्टिव थिंग फॉर मी, और मैंने उसको स्टार्ट किया देखना
the way of intelligent targeting. Next point, next one, interest, stage 2 interest. Next one is interest. अब ये एक ऐसा स्टेज है जहां पर the people have curiosity, like if they see something, like मैंने कुछ देख लिया, मान लीजिए स्पेक्स देख लिया, कुछ भी ऐसा बहुत अच्छा लगा मुझे देखने में, तो फिर मैं कहीं ना कहीं क्यूरियस हूँ, आई जस्ट वांट टू नो अबाउट एवरीथिंग, मैं हर चीज जानना चाहूंगी प्रोडक्ट के बारे में, ब्रांड, प्राइस, एवरीथिंग, राइट? सो यहाँ पर मेरा इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट का मतलब है कि मैं आई जस्ट वांट टू टेक ऑल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन by take the help, I will take the help of different social media and all, मतलब मैं कहीं से भी देखूंगी, ढूंढूंगी, नॉलेज लूंगी, ठीक है? सो यहाँ पर ये बहुत मोस्ट क्रूशियल स्टेज है बोल सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर लोगों में क्यूरियोसिटी भी होगी, कंज्यूमर्स में। आगे आगे इसमें लिखिए, इंटरेस्ट में लिखिए, इसमें लिखिए इंटरेस्ट में, if the consumer feels the product has no meaning for him, or if he does not find it captivating enough. If the consumers feel the product has no meaning for him, or if he does not find it captivating enough, he will never reach to the purchase stage. He will never reach to the final stage of purchase stage or action stage. He will never reach to the purchase stage. Okay? So it is one of the important stage कह सकते हैं. It is important to deliver your product. आगे लिखिए इसमें purchase stage लिख लिया. He will never reach the purchase stage. आगे लिखिए. It is important to deliver your product. It is important to deliver your product. Product message in customized and crisp way. Customized and crisp way. That suits the profile of intended audience. It is important to deliver your product message in a customized and crisp way that suits the profile of the intended audience. ठीक है? यानी कि अगर आप कभी भी कोई एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं या प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी दिखा रहे हैं, तो कस्टमर अगर इंटरेस्ट नहीं लेगा तो दैट कंज्यूमर नेवर गो टुवर्ड द परचेज स्टेज और फाइनल स्टेज ऑफ परचेज। ठीक है, मतलब कभी भी परचेज नहीं करेगा। इंटरेस्ट को जगाने के लिए यानी क्यूरियोसिटी को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, क्या कर सकते हैं आप? व्हाट यू कैन डू, यहाँ पर जो भी आप मैसेजेस वगैरह जो भी आप कम्युनिकेट कर रहे हैं कंज्यूमर को, वो थोड़ा सा क्रिस्प दिखाइए, कस्टमाइज दिखाइए, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग दिखाइए। ठीक है, आप जो थीम वगैरह जो यूज करें और जो प्रोडक्ट के बारे में बेनिफिट्स जो बता रहे हैं आप, दैट विल बी मतलब वो इफेक्टिव होना चाहिए ताकि कस्टमर अपनी नीड के साथ उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कंपेयर कर पाए। ठीक है, कई बार कस्टमर जो होते हैं वो एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, वो अटेंशन भी देंगे, बट एक फाइनल जो इंटरेस्ट होता है प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए वो निगेटिव हो जाता है। जैसे कि उन्होंने देखा कोई प्रोडक्ट एंड फिर उनको लगा कि नहीं, जैसे अगर मान लीजिए कि मुझे चाहिए मेमोरी का, एग्जाम्पल के लिए मेमोरी कार्ड 4 GB का भी, 32 GB का भी है, बहुत सारे हैं, 64 GB का, बहुत ज्यादा है ये भी। तो यहाँ पर मेरा जो बेसिकली मुझे डेटा बहुत सारा बेसिकली स्टोर करना है, तो आई वांट 128 GB, राइट? इस तरीके का मेरा वो होगा कि मैं 128 GB का ऐसे लूं। और मान लीजिए कि मुझे उस तरीके की चीजें नहीं मिल रही, मतलब जो मुझे नीड है, जो मुझे बेसिकली नीड को फुलफिल करने वाली प्रोडक्ट अवेलेबल है, वो प्रॉपर नहीं सुटेबल है मेरे नीड के साथ, तो इस केस में निगेटिव हो जाएगा क्या आपका इंटरेस्ट। इसलिए इंटरेस्ट को जगा के रखना है, इंटरेस्ट को बना के रखना है किसके विद इन में, कंज्यूमर्स। ठीक है, तो इसके लिए क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं, व्हाट वी कैन। ठीक है, इंटरेस्ट के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, जैसे कि आप थोड़ा सा इंटरेस्टिंग एडवर्टीजमेंट कीजिए। इंटरेस्टिंग एडवर्टीजमेंट प्रोडक्ट को जब भी शो कीजिए तो बेनिफिट्स के साथ दिखाइए, यानी मैसेज जो आप दे रहे हैं कंज्यूमर को वो सुटेबल होना चाहिए। ठीक है, मैसेज शुड बी क्लियर, ऑनेस्ट, एज वेल एज वो आपके
इंफॉर्मेशन प्रॉपर, ठीक है। तो ये हमारे इंटरेस्ट को बनाए रखने में, ठीक है, क्या करेगा, हेल्प करेगा। नेक्स्ट डिजायर लिखिए। बहुत जगह पे इंटरेस्ट और डिजायर को एक जैसा भी लिया जाता है, डिजायर इंटरेस्ट, बट दैट इज नॉट सिमिलर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इट इज नॉट इनफ टू जनरेट द इंटरेस्ट ओनली। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंटरेस्ट आ गया प्रोडक्ट को खरीदने में, फाइनली समझ आ गया तो भाई वो आपका फाइनल स्टेज हो गया, नहीं। बहुत बार ये हो सकता है कि कन्वर्ट वो जो है वो आपका जो इंटरेस्ट के बाद भी वो सेल्स में कन्वर्ट ना हो। इंटरेस्ट और डिजायर जो है बेसिकली एक बार साइमल्टेनियसली और साथ साथ उसको लिया जाता है। सो जैसे ही इंटरेस्ट आपका इमीडिएटली आफ्टर इंटरेस्ट आपका डिजायर जो है वो जनरेट होगा, मतलब आफ्टर इमीडिएटली आफ्टर इंटरेस्ट योर डिजायर विल बी जनरेटेड, ठीक है। इफ कस्टमर माइट नॉट एक्चुअली नीड दैट प्रोडक्ट, हो सकता है कि कस्टमर को एक्चुअली उस प्रोडक्ट की नीड ना हो, बट बिकॉज ऑफ एडवर्टाइजमेंट उसको लगा कि ले लेना चाहिए लाइक दिस, ठीक है। सो द ब्रांड कैन ट्राई टू क्रिएट द वांट फॉर इट, यानी कि अगर पर्सन जो है उसको लग रहा है इसका नीड नहीं होगा तो उसको वांट में आप कन्वर्ट कीजिए कि पर्सन ले ही उस प्रोडक्ट को, क्लियर है। तो डिजायर स्टेज जो है, मतलब इसमें क्या करना है आपको, बाकी जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे आप कंपेयर करना शुरू कीजिए अपने प्रोडक्ट कि व्हाटएवर यू आर प्रोवाइडिंग देम दैट यू नेवर गेट फ्रॉम एनी कॉम्पिटिटर्स और अल्टरनेटिव। जो हम प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं उतना बेटर यू विल नेवर गेट फ्रॉम द कॉम्पिटिटर्स। तो यहाँ डिजायर के लिए आप उनके मन में क्या कर सकते हैं, यू विल बेसिकली डिस्टिंक्ट दिखाइए अपने प्रोडक्ट को कॉम्पिटिटर्स से, ब्रांड को बहुत ज्यादा हाईलाइट कीजिए, आउटस्टैंडिंग फीचर्स वगैरह यूज कीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डिजायर में क्रिएट, डिजायर बेसिकली बोल सकते हैं, इस डिजायर में मतलब उस स्टेज में हम कंज्यूमर को डिजायर तक ला सकते हैं। यानी कि फर्स्ट थिंग क्या होगा आपका, फर्स्ट इज अवेयरनेस, यानी कि आप उनको इंफॉर्मेशन दे दीजिए भाई ये प्रोडक्ट है, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट है। सेकंड, इंटरेस्ट के लिए उनको आप प्रॉपर ऑनेस्ट इंफॉर्मेशन दीजिए, बेनिफिट्स बताइए प्रोडक्ट के क्या क्या बेनिफिट्स वगैरह है, ठीक है, ब्रांड को। अब थर्ड वाले में क्या कीजिए कि आप अगर प्रोडक्ट जो है ना वो कितना बेटर प्रोडक्ट है, कितना क्वालिटेटिव है और कॉम्पिटिटर ऐसा कभी नहीं प्रोवाइड कर सकता, लाइक एक डिजायर जगाइए कंज्यूमर के बीच में कि वो उस प्रोडक्ट को खरीद ही ले, मतलब आफ्टर इंटरेस्ट हो सकता है कि वो प्रोडक्ट को ना परचेज करे अगर उनको जरूरत नहीं लग रहा है, बट यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू वांट एंड फाइनल सेल्स आपको करवाना है, ठीक है। तो अब कॉम्पिटिटर से आप उनको क्या कर दीजिए, बेसिकली कंपेयर कीजिए प्रोडक्ट्स को, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। एंड फाइनली जब एक बार डिजायर स्टेज में पहुंच गया कंज्यूमर, ठीक है, देन वो फाइनल कौन से स्टेज में जाएगा, दैट इज एक्शन। नेक्स्ट लिखिए, एक्शन में लिखिए, finally when the consumer has a positive disposition towards the brand, finally the consumer has a positive disposition towards the brand, he/she will be willing to try it or buy it. He or she will be willing to try it or buy it. ठीक है, यानी कम से कम वो खरीद कर उसको एटलीस्ट ट्राई जरूर करना चाहेंगे, ठीक है। अगर वो एक बार डिजायर स्टेज को क्रॉस कर गए, ठीक है, फाइनली जब डिजायर स्टेज में सेटिस्फाई हो गए, देन आफ्टर दैट दे विल मेक द परचेज, ठीक है। अब इस स्टेज के लिए आप क्या कर सकते हैं, एट दिस स्टेज आप क्या कर सकते हैं, स्कीम्स लेकर आइए, डिस्काउंट दीजिए, फ्री ट्रायल्स वगैरह दीजिए, ठीक है, एक पे एक फ्री रेफरल सिस्टम वगैरह। तो ये फाइनल आपका क्या होगा, एक्शन यानी परचेज। और इसके लिए कंपनी क्या कर सकती है, दे कैन गिव द ट्रायल स्कीम्स वगैरह के, फाइनली कोई भी प्रोडक्ट को आप परचेज कीजिए, ट्राई कीजिए, एटलीस्ट एक पे एक फ्री का ऑफर। तो इस तरीके से बेसिकली हम क्या कह सकते हैं, फाइनली एक्शन, मतलब कि आप प्रोडक्ट को कुछ ना कुछ आप एक्शन लीजिएगा, और एक्शन शुड बी इन पॉजिटिव वे कि आप प्रोडक्ट को परचेज कीजिए। अब आप प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं तो आप लॉन्ग टर्म तक रहे कंपनी में, तो दे विल गिव यू सो मेनी बेनिफिट्स, जैसे कि आपका एक पे एक ऑफर दे दिया, रेफरल कोड वगैरह दे दिया, ठीक है, और भी कुछ एडिशनल बेनिफिट्स भी दे दिया, जैसे EMI की कुछ ऑप्शन दे दिया, मतलब दिस काइंड्स ऑफ थिंग्स विल प्रोवाइडेड टू द कंज्यूमर इन द एक्शन स्टेज, और वी कैन से इन परचेज स्टेज। Finally the product will be basically
purchased by the consumer. तो ये था आपका आइडा का मॉडल, ठीक है। अब क्रिएटिंग अवेयरनेस में आपने सारी चीजें लिख ली थी, क्रिएटिंग अवेयरनेस में क्या क्या चीजें आ सकती है, कि आइडा को मैंने शॉर्टकट में आप लोगों को बता दिया। फर्स्ट इज अवेयरनेस, सेकंड वन इज फर्स्ट इज अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिजायर एंड फाइनली इज रिजल्ट। तो यहाँ पर क्रिएटिंग अवेयरनेस में वही सारी चीजें आप यूज कर सकते हो, जैसे ब्रांड के बारे में एडवर्टीजमेंट करो, प्रिंट मीडिया को यूज करो, डिस्प्ले करो प्रोडक्ट को, ठीक है। और बाकी और भी क्या चीजें हो सकती हैं इसमें अवेयरनेस में। और अवेयरनेस में ना आजकल कंपनीज एक और चीज कर रही है, जैसे कि वो एक दो कंपनीज के साथ पार्टनरशिप कर लेती है, ताकि अगर कोई आप एक चीज यूज कर रहे हो तो यू विल अवेयर अबाउट द अदर टाइप ऑफ थिंग्स। जैसे यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आपने देखा होगा कि क्या बोलते हैं उसको, Amazon जो है ना वो बैंक, कोई ICICI बैंक के बारे में बताती है, देखते हो कि Amazon से कोई प्रोडक्ट खरीदेंगे तो ICICI पे इतना % डिस्काउंट मिलेगा, छूट मिलेगा। सो दीज ऑल आर फॉर क्रिएटिंग द अवेयरनेस, ठीक है। एंड कुछ ऐसी और भी आपकी OTT प्लेटफॉर्म है जिसमें आपके बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट वगैरह देते हैं, ठीक है। एडवर्टीजमेंट वगैरह आपको मिलेगा, जैसे नेटफ्लिक्स का भी ओपन करना, Amazon प्राइम, तो यू विल गेट सो मेनी एडवर्टीजमेंट। सो यहाँ पर कुछ कंपनीज क्या करती है ना कि कुछ ऑनलाइन चैनल्स या OTT के साथ क्या करती है, पार्टनरशिप कर लेती है और उसके बारे में, प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टाइज करती है विद इन दैट सीरीज, वेब और वी कैन से फिल्म, ठीक है। कुछ भी अगर हम देख रहे हो तो बीच बीच में एडवर्टीजमेंट आता है, देखा है सीरीज वगैरह में, तो एक तरीके से पार्टनरशिप कर लेती है, ठीक है। तो आजकल तो ऐसे भी ज्यादातर OTT प्लेटफॉर्म का टाइम है, तो सबसे आगे किस तरीके से अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, किस तरीके से लोगों को जानकारी दे सकते हैं, इन्फॉर्म कर सकते हैं। आकांक्षा, मुस्कान एंड अदर स्टूडेंट्स, Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट पॉइंट जनरेटिंग इंटरेस्ट में, इंटरेस्ट को जनरेट करने में आप जैसे आप यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, जैसे कि एक मंथ का कुछ ट्रायल वगैरह दे दिया, या तो फिर आपने एक और चीज मैंने इसमें बताया था इंटरेस्ट में, क्या बताया था मैंने आकांक्षा, मैम बीच में मेरा कट गया। ठीक है। तो बेसिकली इंटरेस्ट के लिए आप कुछ ऑफर्स भी दे सकते हो, खैर उन्होंने एक्शन में ये चीज को एक्सप्लेन किया, बट यू कैन आल्सो गिव सम ऑफर्स वगैरह दे दिया, जैसे इंटरेस्ट जगाने के लिए, जैसे नेटफ्लिक्स पे एक मंथ का ट्रायल फ्री मिल गया, तो दैट इज फॉर क्रिएटिंग द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स, ठीक है। नेक्स्ट वन इज डिजायर, नेक्स्ट वन इज डिजायर। अब इस डिजायर में आप क्या क्या चीजें हैं, जैसे इस पॉइंट पे आप क्या क्या चीजें, सो यहाँ पर हम बेसिकली डिजायर के लिए क्या कर सकते हैं, लाइक एक्सपीरियंसिंग फीचर्स वगैरह ला सकते हैं, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर कह सकते हैं कि क्रिएट डिजायर को क्रिएट करने के लिए हम लोग कुछ सब्सक्रिप्शन प्लान वगैरह दे सकते हैं, जैसे हाईलाइट रिजोल्यूशन वीडियो, मल्टीपल टीवी व्यूज, ठीक है। यानी कि हम बेसिकली इंटरेस्ट को वो से एक्सपैंड कर सकते हैं डिजायर्ड की तरफ। फाइनली आप जो है उसी पर्टिकुलर OTT प्लेटफॉर्म को यूज करें, ठीक है। और फाइनली जो है आप एक बार इफ यू विल स्टार्ट, मतलब आपको हैबिट लग गई एक बार, देन आफ्टर दैट यू विल गोइंग टू टेक द होल ईयर सब्सक्रिप्शन अकाउंट। सो दिस इज अ काइंड ऑफ, कह सकते हैं कि आइडा का जो बेसिकली मॉडल है, मतलब आइडा मॉडल जो है ये इसी चीज के लिए है। और आइडा मॉडल में एक लाइन और भी लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, छोटा सा पॉइंट है इसमें। अवेयरनेस में क्या है, कंज्यूमर गेट्स टू नो दैट प्रोडक्ट एग्जिस्ट, यानी दिस प्रोडक्ट एग्जिस्ट। पहला जो है अवेयरनेस जो है, इसमें एक बगल में ब्रैकेट में लिख लीजिए, एक लाइन का मीनिंग है। कंज्यूमर यहाँ पर अवेयरनेस में क्या होगा, कंज्यूमर गेट्स टू नो दैट दिस प्रोडक्ट XYZ एग्जिस्ट, यानी ये प्रोडक्ट जो है ये एग्जिस्ट करता है, यानी मिलता है। अवेयरनेस यानी ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, दिस प्रोडक्ट इज अवेलेबल, लाइक दिस इज नोन एज अवेयरनेस, नॉलेज, इंफॉर्मेशन दैट प्रोडक्ट इज अवेलेबल। फर्स्ट इंटरेस्ट, इंटरेस्ट में क्या होगा, इंटरेस्ट में क्या होगा, दैट कंज्यूमर विल, एक इंटरेस्ट आएगा आपको प्रोडक्ट, मतलब हो सकता है कि आपको नीड हो प्रोडक्ट का, या फिर हो सकता है कि आपको खरीदने का मन कर रहा हो, इंटरेस्ट जगे। और इंटरेस्ट में क्या होगा, कंज्यूमर रीड्स अबाउट द प्रोडक्ट बेनिफिट, यानी प्रोडक्ट के बारे में बेनिफिट क्या है, क्या मतलब प्रोडक्ट का क्या यूज है, ठीक है, इसको किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं, कितना यूजफुल है हमारे लिए, तो ये इंटरेस्ट में आएगा। यानी कंज्यूमर रीड्स अबाउट द, लिखिए कंज्यूमर रीड्स अबाउट द प्रोडक्ट बेनिफिट, कंज्यूमर रीड्स अबाउट द
will be useful to consumer. यानी इंटरेस्ट तब जगेगा जब हमें ये प्रोडक्ट थोड़ा यूजफुल लगेगा, जब उसके बेनिफिट्स को जानेंगे, ठीक है। तो कंज्यूमर रीड अबाउट द प्रोडक्ट बेनिफिट्स एंड हाउ इट विल बी यूजफुल टू हिम, ठीक है। तो दैट विल कम्स अंडर द सेकंड, दैट इज इंटरेस्ट। द थर्ड वन इज डिजायर। डिजायर में क्या होगा, बेसिकली कंज्यूमर डेवलप्स बोल सकते हैं लाइकिंग फॉर द प्रोडक्ट, यानी कंज्यूमर को कहीं ना कहीं वो प्रोडक्ट पसंद आने लगेगा, तो यानी खरीदने का मन करने लगेगा। कंज्यूमर डेवलप्स अ लाइकिंग फॉर द प्रोडक्ट, कंज्यूमर डेवलप्स अ लाइकिंग फॉर द प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन इज कंज्यूमर बाइज द प्रोडक्ट, यानी फाइनली कंज्यूमर जो है वो प्रोडक्ट को खरीद लेगा। फाइनली जो कंज्यूमर है he will make purchase। हाँ, इसको मैं थोड़ा सा आप लोग को शॉर्ट में एक बार अच्छे से लर्न करा देती हूँ। आइडा क्या है? आइडा एक तरीके का ब्लूप्रिंट है, कंपनीज को स्ट्रैटेजी डेवलप करना चाहिए, क्योंकि कोई भी कंज्यूमर डायरेक्टली प्रोडक्ट को परचेज नहीं करेगा जब तक उसको प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज ना हो। वो एक स्टेज के थ्रू जाता है फाइनल परचेज करने के लिए। आज मैंने एक चीज, एक प्रोडक्ट, जब मैंने एक बॉटल भी मैं इसलिए लिया है मैंने क्योंकि ये मेरे लिए यूजफुल है, ठीक है। जब तक कंज्यूमर को कोई प्रोडक्ट की नीड ना हो तब तक कंज्यूमर का एक इंटरेस्ट कहते हैं तब तक प्रोडक्ट के लिए नहीं होगा। अब आइडा जो है यहाँ पर कंपनी जो है या कोई मार्केटर्स जो है स्ट्रैटेजीज को बनाएंगी, फाइनल स्ट्रैटेजीज बनेगा, ठीक है। किस तरीके से इस चारों स्टेज को हम इफेक्टिव बनाएं ताकि फाइनली कंज्यूमर जो है वो परचेज करे। तो अवेयरनेस के लिए आप क्या कर सकते हो? एडवर्टीजमेंट कीजिए, एड्स डालिए, न्यूज़पेपर में डालिए, ठीक है। इंफॉर्मेशन फैलाइए, लोगों को पता लगे। आजकल मैं एग्जांपल ले रही हूँ गर्ल्स के लिए स्पेशल, जैसे कि गर्ल्स आजकल कभी फेसबुक ओपन करती है, बहुत सारे ऑनलाइन साइट्स हैं जिसमें एक्सेसरीज मिलते हैं जैसे इयररिंग्स एंड। तो जैसे ही हमने उस ब्रांड के बारे में हमें पता लग गया कि चलो ये एवर स्टाइलिश जो है, दिस इज वन ऑफ द ब्रांड फॉर द इयररिंग्स, तो दैट इज नोन एज अवेयरनेस, ठीक है। अब मैंने उसके प्रोडक्ट को देखना शुरू किया क्योंकि मेरा इंटरेस्ट जगा, मैंने बोला नया कोई ब्रांड है चलो देखते हैं। जैसे मैंने प्रोडक्ट को देखना शुरू किया, ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट में क्या हुआ कि प्रोडक्ट की बेनिफिट्स, यूजफुल, उसका क्या फीचर है, प्रोडक्ट कितना यूजफुल है, हर चीज मैंने उसके साथ चेक किया। जैसे मुझे कलर्स मैंने देखे तो कलर्स मुझे अच्छे लगे, कलर्स वगैरह मैंने देखा, प्रोडक्ट के बेनिफिट्स क्या है, किस चीज का बना हुआ है, उसके बारे में नॉलेज वगैरह मैंने इंटरेस्ट में ले लिया। यानी इंटरेस्ट जगह तो कंज्यूमर ने प्रोडक्ट के बेनिफिट्स को किस तरीके से यूज करना है ये सब चीज मैंने देख लिया। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस स्टेज नाउ आई स्टार्टेड लाइकिंग सम ऑफ दैट प्रोडक्ट, यानी कि मुझे बहुत सारी चीजें देखी, इंटरेस्ट था तो मैंने सारी चीजों को देख लिया। अब डिजायर का मतलब ये होता है कि अब मुझे प्रोडक्ट पसंद आने लगा। जैसे मान लीजिए कि मुझे उसमें से 2 इयररिंग पसंद आने लगा, अब वो 2 इयररिंग जो है वो जब मुझे पसंद आया तो मैंने फाइनली क्या किया, परचेज किया। तो इसको कहते हैं आइडा मॉडल। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया आइडा? Yes, ma'am. चलिए ठीक है। सो एनीवन हैव एनी डाउट दिस टॉपिक? नहीं? चलिए अब हम आगे मूव करते हैं हायरार्की ऑफ इफेक्ट मॉडल फॉर प्रमोशन मिक्स। रेज योर हैंड। यस आकांक्षा? परचेज फनल ओके, व्हाट इज आइडा? बताइए। स्ट्रैटेजी है, एक ब्लूप्रिंट है जो कि कंपनी तैयार करती है जिसके थ्रू वो उसका प्रोडक्ट का परचेज हो सके। तो मैम फर्स्ट का होता है फुल फॉर्म ए फॉर अवेयरनेस। यहाँ पे कंपनी एडवर्टीजमेंट के थ्रू या फिर डिफरेंट सैंपल के थ्रू अवेयर क्रिएट करती है। यहाँ पे लोग जो भी कस्टमर होते हैं वो प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं कि वो प्रोडक्ट कैसा है, क्या है। नेक्स्ट होता है इंटरेस्ट। प्रोडक्ट के बारे में जानने के बाद उनको इंटरेस्ट लगता है कि हाँ ये प्रोडक्ट है, ये इसकी जरूरत है। देन फिर प्रोडक्ट के बेनिफिट्स एंड ऑल, राइट? ओके, नेक्स्ट मैम थर्ड स्टेप डिजायर है। यहाँ पे इंटरेस्ट के बाद डिजायर होता है। मैम इज अवेयरनेस कस्टमर को परसीव हो और सेपरेट करें। मैम आई एम ऑडिबल? यू आर ऑडिबल। हेलो, यस यू आर ऑडिबल। ये वो काम करता है और फंक्शन बताते हैं ताकि वो फिर आई से होता है मैम इंटरेस्ट। उसको बताने के लिए मैम, इंटरेस्ट जगाने के लिए हम लोग उनका मेरिट बताते हैं ताकि ये आपका प्रॉब्लम सोल्व हो सकता है और ये आप ऐसे यूज कर सकते हैं। प्रोडक्ट के बारे में सारी जानकारी देते हैं ताकि उनका इंटरेस्ट राइज हो और वो पोटेंशियल बने परचेज करने के लिए, वो परसुएड हो सामान के बारे में जानने के लिए और सामान खरीदने के लिए, सर्विस
इसको कंज्यूम करने के लिए। उसके बाद मैम आता है डिजायर। डिजायर में मैम मतलब हम लोग ये फोकस करते हैं कि whatever I am selling to you, it's mainly accomplish your desire and it will your product where you have expectation from the product। तो हम इस पे फोकस करते हैं ताकि ये करते हैं। So what is the meaning of AIDA? I think सबको complete हो गया ये AIDA topic। क्या क्या companies कर सकती है for this particular model for understanding the consumer learning process and what kind of strategy they can use in the different stages। ठीक है, तो ये हमने कर लिया AIDA। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं, that is hierarchy of effects model for promotion mix। ठीक है, अब ये थोड़ा सा आइडा की तरह ही है, बस इसमें और एक और चीज, अभी आइडा में ना एस भी इंक्लूड हो गया, दैट इज सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन इज आल्सो इंक्लूडेड इन दैट इज आफ्टर परचेजिंग द प्रोडक्ट हाउ मच यू लाइक दैट प्रोडक्ट, आफ्टर एक्सपीरियंसिंग दैट प्रोडक्ट यू आर सेटिस्फाइड और नॉट, मींस दे आर बेसिकली कैपेबल, दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज कैपेबल फॉर सॉल्विंग योर प्रॉब्लम और नॉट, मे बी बिकॉज ऑफ द एडवर्टाइजमेंट एंड बिकॉज ऑफ द अदर परसुएशन, मे बी वी परचेज द प्रोडक्ट, बट द फाइनल थिंग we'll experience when we started using it, right? So ये चीज होगा आपका satisfaction, that will going to tell you that how much customer are satisfied, and for the satisfaction what kind of strategy the company can use, that they can give the after sales services, they can give the delivery system will be there, replacement system will be there, and customer services will be there, so all these are for the satisfaction purpose। ठीक है, next is AIDA and we can say hierarchy of effects model for promotion mix। अब ये क्या है इसके बारे में देखते हैं। only 4 steps, but now 1 steps are more included, but according to your book also there are only 4 steps that is mentioned in AIDA। in this hierarchy of effect model there are 6-7 stages, यानी 6 stages है। यहाँ पर कौन कौन सी stages है? awareness, आप next page जब कीजिएगा, पेज नंबर 144, you will get one model of consumer response। दिख रहा है? दिख रहा है? तो ये वाले पेज में आप जब ओपन कीजिएगा यू विल गेट कि यहाँ पर 6 स्टेजेस की बात की जा रही है। व्हाट आर दीज स्टेजेस? ध्यान से देखिए, सबसे पहला क्या है आपका? अवेयरनेस, नॉलेज, लिंकेज, प्रेफरेंस, एंड दिस वन इज कन्विक्शन, एंड फाइनली परचेज। तो यहाँ पर इसको थोड़ा इलैबोरेटिव फॉर्म में, मतलब आइडा इज सम कह सकते हैं कि थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन किया गया डीपली इसको समझने के लिए। जहां आइडा में सिर्फ 4 स्टेज थे, यहाँ पर ये 6 स्टेजेस है। हायरार्की ऑफ बेसिकली इफेक्ट, हायरार्की ऑफ आपका इफेक्ट्स मॉडल, हायरार्की ऑफ इफेक्ट। ठीक है, तो हायरार्की ऑफ इफेक्ट में लिखिए, थोड़ा बहुत लिख सकते हैं इसमें तो कि इन हायरार्की ऑफ इफेक्ट मॉडल, in hierarchy of effect model there are 6 stages, first one is awareness, second one is knowledge, first one is awareness, second one is knowledge, third one is liking, L-I-K-I-N-G, liking, fourth one is preference, next one is conviction, after preference conviction, and finally purchase, ठीक है। तो यहाँ पर जो बेसिकली आपके 6 स्टेजेस हैं, आइडा में 4 थे, यहाँ 6, ठीक है। अवेयरनेस, नॉलेज, लाइकिंग, प्रेफरेंस, कन्विक्शन एंड परचेज, ठीक है। चलिए, तो अब इसमें 6 आपके स्टेजेस हो गए, और ये जो है ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक एक्सटेंडेड वर्जन है, दिस इज एक्सटेंडेड और इलैबोरेटेड वर्जन ऑफ आइडा, ठीक है। और इसको 1961 में लाया गया था, जो हायरार्की ऑफ इफेक्ट मॉडल है, इट कम्स इन 1961, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड, एंड इसके स्टेप्स क्या है, व्हाट आर द स्टेप्स, सेम एज इट इज आइडा की तरह ही है। ओके, तो यहाँ पर जो स्टेजेस है सेम, यहाँ पर अवेयरनेस में वही सारी चीजें होंगी जो आपके आइडा में था, ठीक है। यू विल डू एडवर्टाइजमेंट एंड ऑल, ठीक है। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट वगैरह आप बेसिकली कर सकते हैं, प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज दे सकते हैं, प्रिंट मीडिया का यूज, जर्नल का यूज, ठीक है। अब यहाँ पर इसके नेक्स्ट स्टेज जो है, दैट इज समहाउ रिलेटेड विद अवेयरनेस, दैट इज नॉलेज, ठीक है। नॉलेज जो है दैट इज द नेक्स्ट स्टेप that is used by the potential customer। जब एक बार awareness हो गया, then they will use the knowledge, then they will go toward the knowledge, ठीक है। अब इसमें
कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम उसकी क्वालिटी देखेंगे, उसके प्रोडक्ट का प्राइस देखेंगे, प्रोडक्ट का लुक देखेंगे, बाकी और भी फैक्टर्स को क्रिटिकली इवैल्यूएट करेंगे, ठीक है। सो इन नॉलेज, लाइक अवेयरनेस तो सबको पता चल गया, बट इन नॉलेज व्हाट वी कैन डू, इन नॉलेज द कस्टमर्स लर्न मोर अबाउट द प्रोडक्ट। इसमें लिखिए नॉलेज में क्या होगा, पोटेंशियल कस्टमर्स लिखिएगा, पोटेंशियल कस्टमर्स लर्न more about the products, potential customers learn more about the product, यानी ज्यादा से ज्यादा you will try to know about the product, ठीक है। compare them, आगे लिखिए और भी क्या क्या चीजें करेंगे नॉलेज में। पहला तो पोटेंशियल कस्टमर ट्राई करेगा बहुत सारी चीजों को जानने के लिए, किस चीज के बारे में जानने के लिए, प्रोडक्ट के बारे में। compare them to the offers, compare them to the offers of the other brands, compare them to the offer of the other brand, यानी बाकी जो ब्रांड है उनके साथ हम क्या करेंगे, बेसिकली कंपेयर करेंगे। किसको कंपेयर करेंगे, जो प्रोडक्ट हमने देखा उसको कंपेयर करेंगे, ठीक है। और साथ साथ में यहाँ पर भी विल आल्सो सी, क्या क्या चीजों को हम देखेंगे, विल एनालाइज द क्वालिटी, क्वालिटी देखेंगे, प्रोडक्ट क्वालिटी देखेंगे, प्रोडक्ट का प्राइस देखेंगे, प्रोडक्ट का लुक देखेंगे, और बाकी भी अदर फैक्टर्स को हम सबको इवैल्यूएट करेंगे, यानी कंपेयर करेंगे काइंड ऑफ, ठीक है। और यहाँ पर और भी चीज है, जैसे नॉलेज में कई बार रिटेलर्स का भी रोल होता है कि दे विल गिव यू सम नॉलेज अबाउट द न्यू प्रोडक्ट अराइवल एंड ऑल। तो यहाँ पर कस्टमर्स जो है, एक रिटेलर्स टास्क भी है, यहाँ पर क्या करेगा वो, कस्टमर्स को प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे। तो कहीं ना कहीं दिस ऑल आर द पार्ट ऑफ द नॉलेज। अब जैसे नॉलेज कैसे हुआ, मान लीजिए कि मुझे मोबाइल फोन, मैंने कोई एडवर्टीजमेंट देखा किसी भी XYZ मोबाइल फोन का। अब मैंने जो एडवर्टीजमेंट देखा तो मेरा अवेयरनेस, ठीक है, मुझे पता लग गया प्रोडक्ट इज एग्जिस्टिंग, प्रोडक्ट है, नॉलेज बेस के बारे में पता लग गया, अवेयर हो गई मैं, ठीक है। अवेयरनेस को हिंदी में क्या बोलते हैं, व्हाट इज द अवेयरनेस को क्या बोलते हैं हिंदी में, जागरूकता, जागरूकता, जागरूकता। हाँ, तो हम लोग जागरूक हो गए, हमको पता लग गया। नेक्स्ट नॉलेज में अब हम क्या करेंगे, अब हम ना कंपेयर करेंगे अलग अलग जो भी ब्रांड्स हैं उनके ऑफर्स को, प्राइस को, ठीक है, लुक देखेंगे, प्रोडक्ट कैसा है देखने में, ठीक है। उसके अलावा मतलब बेसिकली प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश करेंगे, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। इवन रिटेलर से भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि टेल मी अबाउट दिस प्रोडक्ट। सो इन दिस स्टेज बेसिकली व्हाट वी विल do, we will basically collect all the information, we will basically create the knowledge about that particular product. Next point, अब next है preference, and next is liking क्या होगा। अब यहाँ पर जो हायरार्की इफेक्ट में लाइकिंग जो है, इसको बोल सकते हैं इफेक्टिव स्टेज, एक तरीके का। इसमें आपका इट इज द टाइप, ये इसमें लिखिए, थोड़ा सा लिख लीजिए इसमें, liking in the hierarchy of effect, liking in the hierarchy of effects is sometimes known as an effective stage, liking in the hierarchy of effects, it sometimes, yeah, it is known as effective stage. It is a type when a brand establish an emotional connection with a customer, ठीक है। यानी कि यहाँ पर कस्टमर जो है, यहाँ पर कंपनी क्या करेगी, दे विल ट्राई टू क्रिएट अ इमोशनल लिंक, एक इमोशनल लिंक को क्रिएट करने की कोशिश करेगी, ठीक है। कौन करेगी ये चीज, कंपनी करेगी। यहाँ पर एक इफेक्टिव स्टेज है जहाँ पर एक इमोशनल कनेक्शन स्टार्ट करेगी कस्टमर के साथ, और इस स्टेज में लिखिए, दिस स्टेज इज अबाउट making people feel something about your company and the product you sell, यानी यहाँ पर प्रोडक्ट को थोड़ा बहुत बोल सकते हैं कि लाइक करे कंज्यूमर, ठीक है। आपने नॉलेज वगैरह ले लिया, अब यहाँ पर एक इमोशनल कनेक्शन को बनाने की कोशिश करेगी कंपनी, ठीक है। और यहाँ पर जो स्टेज है, यहाँ पर पीपल को ऐसा लगेगा कि मतलब कि भाई हम कौन सी कंपनी है, कौन सा प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस स्टेज में पीपल फील समथिंग अबाउट, मतलब कुछ उनको फील होगा आपके प्रोडक्ट को लेकर के,
एक ओनली स्टेप विच इज नॉट नेसेसरली टू नीडेड, मतलब यहाँ प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है, हम किसको प्रायोरिटी दे रहे हैं, हम कौन सा प्रोडक्ट को खरीदेंगे प्रेफरेंस, ठीक है। यहाँ पर बोल सकते हैं कि समवन, मतलब बहुत सारे ऐसे कंज्यूमर्स होते हैं, आफ्टर ऑल समवन मे स्टिल बी नॉट फुली कन्विंस्ड, यानी हो सकता है कि कई बार बहुत सारे कस्टमर जो है वो लाइकिंग वाले स्टेज पे भी मतलब ना पहुंचे, लाइकिंग स्टेज के बाद भी प्रॉपर्ली कन्विंस ना हो, यानी अपने ब्रांड के साथ उसको कोई कनेक्शन ना लगे, मतलब हो सकता है कि फाइनली जो कस्टमर है वो कन्विंस नहीं हो, ये कह सकते हैं कि फाइनली द कस्टमर इज नॉट कन्विंस, ठीक है। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो, इस केस में आप देखोगे कि बेसिकली आप कोई कॉम्पिटिटर को देखोगे कि उसने कौन सी स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट किया है, और आप उससे कनेक्ट करोगे कि भाई आपका प्रोडक्ट उनसे कैसे बेटर है, जो पहले वाले स्टेज में था ना, पहले वाले डिजायर वाले स्टेज में था ना, वही चीज यहाँ प्रेफरेंस में, मतलब आप कोशिश करोगे प्रायोरिटी बनने का, मतलब आप अपने ब्रांड को प्रायोरिटी बनाने की कोशिश करोगे, यानी कि कस्टमर जो है वो आप ही के प्रोडक्ट को प्रेफर करे, यानी जो कॉम्पिटिटर जो भी मिस्टेक्स कर रहा होगा, जो भी चीजें कर रहा होगा, जो भी स्ट्रैटेजी यूज कर रहा होगा, उस चीज को एडवांटेज लेते हुए विल क्रिएट द प्रायोरिटी, प्रायोरिटी किस चीज का, अपने प्रोडक्ट का, ठीक है, क्रिएट कीजिए कंज्यूमर के माइंड में कि अगर वो 10 प्रोडक्ट देखे तो आप ही के प्रोडक्ट को नंबर 1 रैंकिंग दे और उसी प्रोडक्ट को खरीदे। तो प्रेफरेंस इज समथिंग, जब कस्टमर प्रॉपर्ली कन्विंस नहीं हो रहा है, द कस्टमर इज नॉट एबल टू कन्विंस प्रॉपर्ली, इन दिस केस व्हाट यू कैन डू, यू कैन यूज वही कॉम्पिटिटिव वाला, ठीक है। एंड आपको पता है कि कस्टमर जो है ना वो हमेशा, मतलब कह सकते हैं कि कस्टमर इज ऑलवेज राइट वाला कंसेप्ट है हमारे मार्केटिंग, है ना। तो यहाँ पर वही वाला सीन होगा कि उनको अगर कोई डाउट है, कन्विंस नहीं हुआ है, तो इसका मतलब कोई ना कोई कंफ्यूजन है, उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए व्हाट वी कैन डू, वी कैन see the what competitors are doing, and if it is not in the right path, the competitor is not doing in the right path, we can just take जो भी वो कर रहे हैं ना उसका एडवांटेज लेते हुए हम क्या करेंगे, अपने प्रोडक्ट की प्रायोरिटी सेट करना शुरू करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कन्विक्शन, कन्विक्शन। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, उसमें पहले प्रेफरेंस में एक लाइन लिख लो, इसमें क्या कर सकते हो, योर गोल, मतलब कोई कंपनी का गोल क्या होगा, टू चेक आउट द डील्स वगैरह, ठीक है, ऑफर्स ऑन द वेबसाइट योर कॉम्पिटिटर्स टू मेक श्योर दैट दे नथिंग दैट कैन टिप द स्केल टू देयर बेनिफिट, यानी कि आप ये देखिए कि कॉम्पिटिटर्स अरे ये बेनिफिट दे रहा है तो आप ट्राई कीजिए उससे बेटर देने का, ठीक है। अगर वो कुछ गलत कर रहा है तो उसको करेक्ट करके आप बेसिकली अपने प्रोडक्ट को शो कीजिए, समझ में आई बात, यानी कि आपको कॉम्पिटिटर से एडवांटेज लेके अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है। इन द कन्विक्शन क्या है, फाइनल ब्रेकिंग ऑफ कंफ्यूजन, यानी कि अगर मान लीजिए कि कॉम्पिटिटर्स वगैरह से भी फाइनली आपने प्रोडक्ट को कंपेयर करवा लिया सब कुछ, फिर भी कंज्यूमर जो है उसका डाउट क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनल ब्रेक करना है क्या चीज को, डाउट को, किसके डाउट को, कंज्यूमर के डाउट को, ताकि वो प्रोडक्ट को फाइनली परचेज करे। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, दे सी द एडवांटेज क्लियर हैप्पी एंड द वे द प्रोडक्ट लो, मतलब यहाँ फाइनली जो है आप एक कंफ्यूजन को दूर करना है, आपको कन्विक्शन स्टेज इज समथिंग जहां पर आपको फाइनली ब्रेक करना है सारे डाउट कस्टमर का, किस चीज से रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड, एंड दे सी द एडवांटेजेस क्लियर हैप्पी, ठीक है, प्रोडक्ट लुक्स क्वालिटी सब कुछ आप उसको फाइनली एक बार फिर से उसको सारी चीजें बता दीजिए अबाउट द प्रोडक्ट यूज एट ऑल, सारे डाउट सब कुछ जितने भी क्वेश्चन है कंज्यूमर्स के सब आंसर दे दीजिए, फाइनली कंज्यूमर जो है वो 100% एश्योर हो जाए, एंड फिर फाइनली वो प्रोडक्ट को क्या करेगा, परचेज करेगा। तो यहाँ पर एक सिचुएशन आया लाइक कि हर एक स्टेज काफी ज्यादा मैच कर रहा है, बहुत सारी चीजें ऐसी लग रही होंगी ना, ये सब मैच कर रहा है, इसको याद करने का तरीका क्या देखिए। और फाइनली परचेज वाला स्टेज है, परचेज स्टेज में आप क्या कीजिएगा, फाइनली आप प्रोडक्ट को खरीद लीजिएगा, ठीक है। तो ये तो समझ में आ ही गया कि जब एक बार कन्विक्शन दूर हो गया, सब कुछ समझ आ गया, प्राइस क्वालिटी क्वांटिटी सब कुछ क्लियर हो गया, फाइनली प्रोडक्ट परचेज कर लिया। अच्छा, यहाँ पर जो सबसे पहला स्टेज है अवेयरनेस मतलब इंफॉर्मेशन वगैरह इधर उधर से एड जो यूज होगा, नॉलेज जो कंज्यूमर है, बीइंग अ कंज्यूमर मैंने हर जगह से इंफॉर्मेशन लेना शुरू किया, मीडिया सोशल मीडिया यूज कर लिया, जर्नल्स न्यूज़पेपर सब जगह से देख लिया, यानी जो अवेयरनेस के लिए जो सारे के सारे टूल्स कंपनी ने यूज किया उसको मैंने नॉलेज जनरेट करने के लिए सारी चीजों को देखा और बाकी कंपनीज को भी कंपेयर करना शुरू किया कि वो ब्रांड ये ब्रांड दूसरे ब्रांड से कैसे बेटर है, बीइंग अ कंज्यूमर ये मैंने किया, ठीक है, नॉलेज वगैरह क्रिएट करने की कोशिश, ठीक है, अपने इंफॉर्मेशन मैंने लिया, फाइनली मैंने प्रोडक्ट को देखा कि मुझे प्रोडक्ट सही लगने लगा, जो ब्रांड
फाइनली प्रोडक्ट को परचेज कर ले विदाउट एनी कंफ्यूजन। बट ये भी हो सकता है कि आगे वो मूव करते जाए, जैसे कि आफ्टर लाइकिंग प्रेफरेंसेस, मतलब बाकी कौन कौन से प्रोडक्ट जो कॉम्पिटिटर्स है वो क्या क्या एडवांटेजेस दे रहा है, ठीक है, उसको देखते हुए हम क्या करेंगे, उससे बेटर देने की कोशिश करेंगे बेसिकली स्कीम्स एंड ऑफर्स टू द कंज्यूमर्स, ठीक है। तो दिस इज द फाइनल, मतलब एक बोल सकते हैं कि प्रेफरेंस मतलब हम प्रायोरिटी सेट करेंगे प्रोडक्ट के बारे में, बेनिफिट्स दिखाएंगे सब कुछ कॉम्पिटिटर से, फिर वही कंपेयर करेंगे। नेक्स्ट जो आएगा कन्विक्शन, यहाँ पर जितने भी कस्टमर के डाउट हैं, जो भी चीजें जो प्रॉब्लम्स हैं, सब कुछ को सुना जाएगा, सॉल्व किया जाएगा। कन्विक्शन इज द फाइनल, बोल सकते हैं कि ये फाइनल स्टेज है फॉर ब्रेकिंग द ऑल द कंफ्यूजन्स ऑफ द कस्टमर, यानी कस्टमर के जितने कंफ्यूजन है, डाउट है, इसको फाइनली हम इसी स्टेज में कन्विक्शन वाले में ब्रेक कर देंगे। और जो कंज्यूमर प्रेफरेंस में भी कन्विंस नहीं हुए, हो सकता है कन्विक्शन के बाद दे आर कन्विंस्ड एंड फाइनली दे विल परचेज द प्रोडक्ट। सो दिस इज हायरार्की ऑफ इफेक्ट मॉडल। और वो था आइडा मॉडल। आइडा में क्या था, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर एंड एक्शन। इसमें क्या है, अवेयरनेस, नॉलेज, लाइकिंग, प्रेफरेंस, कन्विक्शन एंड फाइनली परचेज। किसी को कोई डाउट है? Thus today we discussed AIDA and hierarchy of effect model. Hierarchy of effect model is extended form of AIDA, right? So AIDA क्या होगा, awareness, interest, desire and finally that is action. And in the second stage hierarchy of effect में क्या होगा आपका, that is first point क्या होगा, awareness, knowledge, liking, preference, conviction and final is परचेज, राइट। सो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट पॉइंट है अवेयरनेस है, दोनों के केस में सेम चीज होगा, बट वहां पर नॉलेज को भी इंक्लूड कर लिया गया आइडा में, बेसिकली किसमें, अवेयरनेस में, ठीक है। यहाँ पर इसको थोड़ा इलाबोरेटिव फॉर्म में दे दिया गया है। इसको एक बार जरूर रीड आउट कीजिएगा। हम लोग इसी को रिवीजन करते हुए आगे के टॉपिक आईएमसी में बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और हो सकता है कि ऑफ द टॉपिक व्हाट एवर वी स्टडी टुडे, किसी को कोई भी डाउट है जो भी हमने आज पढ़ा, ठीक है, तो मिलते हैं। मतलब आप इस चीज को देखिए ना, यहाँ पर दोनों बेसिकली कंज्यूमर का ही बेसिकली ये मॉडल है। कंज्यूमर किस तरीके से प्रोडक्ट को परचेज करता है, तो एक तरीके से ब्रांड या कोई कंपनी किस तरीके से उसको इफेक्ट कर सकती है, उसके लिए बेसिकली ये दोनों मॉडल है। आइडा जो है वो क्या है, कॉग्निटिव प्रोसेस है कि किस तरीके से कंज्यूमर कोई भी प्रोडक्ट को परचेज करता है, ठीक है। और सेकंड वही चीज जो आपका हायरार्की ऑफ इफेक्ट मॉडल, वो भी सही सेम चीज है। अवेयरनेस जगेगा कैसे, बाकी सारे एड्स वगैरह देख के वो तो मार्केटर ही करेगा। सेकंड फाइनली जब आपने एड वेड देख लिया, फिर आपको लगेगा कि अरे भाई प्रोडक्ट के बारे में और भी नॉलेज लेते हैं, तो सारी जगह से नॉलेज इंफॉर्मेशन लीजिएगा, रिटेलर से भी आप पूछेगा। लास्ट नेक्स्ट पॉइंट, आपको प्रोडक्ट हो सकता है पसंद आने लगे, ठीक है। प्रोडक्ट इमोशनली अटैचमेंट बिटवीन द ब्रांड एंड कंपनी, कंपनी भी ट्राई करेगा कि आपको इमोशनली अटैच करे किसके साथ, बेसिकली ब्रांड और कंपनी के साथ। एक बार आप इमोशनली कनेक्ट हो गए ब्रांड के साथ, तो उसके बाद आप कहीं भी मूव नहीं कीजिएगा, आप कमिटेड हो जाइएगा उस पर्टिकुलर ब्रांड के साथ और उसी का प्रोडक्ट आप हमेशा खरीदिएगा। उसके बाद ये तो लाइकिंग हो गया। लाइकिंग के बाद नेक्स्ट स्टेज कहते हैं प्रेफरेंस, यानी बाकी और भी जो ब्रांड अवेलेबल है, बाकी और भी जो कंपनीज अवेलेबल है जो प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रही है, वो ऐसा क्या कर रही है जो इस पर्टिकुलर ब्रांड पे उसका इफेक्ट पड़ रहा है। अगर कोई भी स्कीम्स वगैरह वो चलाएंगे ना, तो तुरंत से उसके जो अल्टरनेटिव ब्रांड्स होते हैं वो भी स्कीम्स वगैरह और उससे बेटर लेकर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको प्रायोरिटी सेट करना है, यानी आपका प्रेफरेंस कौन से प्रोडक्ट को होगा, यानी आप कौन से ब्रांड का प्रोडक्ट खरीदना चाहिएगा, तो वो होगा प्रेफरेंस, बिकॉज सो मेनी अल्टरनेटिव्स आर प्रेजेंट। एंड यहाँ पर कंपनीज क्या करती हैं, अपने कंपनी में स्कीम्स वगैरह, ऑफर्स वगैरह दूसरे एग्जिस्टिंग ब्रांड से डिफरेंट और अलग लेकर आती है, ठीक है, और ज्यादा बेनिफिट्स देगी किसको, कस्टमर को, ताकि हमेशा वो प्रायोरिटी उसका सेट रहे कि भाई यही प्रोडक्ट और यही ब्रांड से हमें प्रोडक्ट खरीदना है। एंड फाइनल है कि यहाँ पर आपको कोई भी जो डाउट है, कन्विक्शन जो है, यहाँ पर आप फाइनली अपने सारे डाउट को क्लियर करोगे और इसमें आपकी कंपनी क्या करेगी, जैसे कस्टमर सर्विस सेंटर हो गया, पर्सनल सेलिंग में अगर आप कोई प्रोडक्ट को खरीदने के लिए गए हो तो वहां पर कस्टमर जो सर्विस है, एग्जीक्यूटिव्स है, वो आपकी हेल्प करेंगे। तो फाइनली आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे कन्विक्शन में, एंड फिर